یہ وہ اپیل ہے جو کہ جنوری 2025 میں داخل ہوئی تھی. آج ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. فروری 2026 میں ہم کہتے ہیں سماعت تو ہو. جب اس کی سماعت ہوگی سلمان صفدر بڑے کلیئر ہیں اس پہ. وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت سماعت ہوگی 15 منٹ سے زیادہ کا یہ کیس ہی نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. اور یہ کیس ہے بھی, سارے کیسز بوگس ہیں اور جیسے جیسے وہ لگتے رہے وہ اڑتے رہے. لیکن یہ اب لگ ہی نہیں رہے. تو عدالتوں سے ہم انصاف چاہتے ہیں, اسی لیے ہم متواتر یہاں آتے ہیں. اور میں باقی ساتھیوں کو بھی کہوں گا, وہ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ ان کے کیسز کی پیروی کریں. سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی اور باقی عدالتوں میں بھی ان کے کیسز پر سارے لوگ پہنچے. اور ہم سارے یہاں پہ ابھی اور لوگ بھی آ رہے ہیں, تو تھوڑی دیر میں سماعت ہوگی. امید ہے سر انصاف کی 26-27ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ دیکھیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 26ویں ترمیم اور پھر 27ویں ترمیم کے بعد اس وقت جو حالات ہیں وہ اتنے نہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, ہر پلیٹ فارم استعمال کرتے رہیں گے تاکہ ہم کیونکہ انصاف کے حصول تک اپنی کوشش ہم جاری رکھتے ہیں. عمران خان صاحب ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے. انسان کی نیت ٹھیک ہو, کوشش وہ کرتا رہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. سر کل عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے کچھ باتیں کی تھی پارٹی کے حوالے سے اور کچھ گلے شکوے کیے تھے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے ورکر کارکن نے خان صاحب کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے, کیا ان کے شکوے شکایت جائز تھے؟ دیکھیں, وہ بہنیں ہیں اور ان کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی. اور اڈیالہ جیل بھی ہم جاتے ہیں, کورٹس میں بھی آتے ہیں, ساری جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک بہن کا بھائی کے لیے جو جذبات ہو سکتے ہیں وہ ان کی انہوں نے عکاسی کی ہے. سر 9 مئی سے پہلے والی پاکستان تحریک انصاف اور 9 مئی کے بعد والی تحریک انصاف, 9 مئی کے بعد تحریک انصاف آدھی سے زیادہ جو ہے وہ وکیلوں کے پاس ہے, آدھی سے زیادہ, چیئرمین سے لے کے سیکرٹری جنرل تک وہ سر. لیکن خان صاحب کا ایک کیس فکس نہیں ہو رہا سر, کیا وجہ ہے؟ توقعات تو بڑھ جاتی ہیں جب آپ کے پاس اتنے زیادہ وکیل ہوں اور اتنے اعلیٰ پائے کے وکیل ہوں, اتنے سینئر وکیل ہوں, تو آپ کی ظاہر توقعات بڑھ جاتی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس پہ اچھا فالو اپ ہو اور عمران خان صاحب کی بھی یہی ہدایت آئی ہے جیل سے کہ ان کے کیسز کی پیروی کی جائے. اور ہم امید کرتے ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 9 مئی کے بعد سارے وکیل جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے کہ لیگل فرنٹ پر اب پی ٹی آئی کو جو ہے وہ زیادہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں. تھینک یو سر. اس ٹائم ہمارے ساتھ جو ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور وکیل بھی ہیں. سر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو گئی, جو وکلا ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے باہر. تو سر آپ لوگوں کو اس عدالتوں سے 26-27ویں ترمیم کے بعد کوئی امید ہے انصاف کی کہ یہ انصاف پہ مبنی فیصلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ قطعاً امید نہیں ہے ہمیں, اور نہ ہی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ان عدالتوں کے پاس کوئی اختیار رہا ہے. لیکن ہم کہاں جائیں, پھر بھی اس پروسیس سے گزرنا ہے, یہیں پہ آنا ہے اور یہیں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. لیکن یہ بہت بے چارے اور بے کس لوگ ہیں, ہمیں کوئی امید نہیں ہے ان سے. سر کل آپ نے پروگرام میں میرے خیال سے ٹی وی شو میں آپ نے کہا تھا مذاکرات کے حوالے سے, کیا مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ سر آپ کن کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ جو آپ کے لیڈر کے ساتھ ایک ملاقات کرانے کی اجازت نہیں دیتے. آپ نے پورا پروگرام نہیں سنا, میں نے یہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن ذرا گورنمنٹ کا رویہ تو دیکھیں کہ ہمارا لیڈر بیمار ہے اور اس سے نہ پراپر ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے اور نہ ملاقات کروائی جا رہی ہے, تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ میں نے یہ کہا تھا. تو سر خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیوں نہیں انصاف مل رہا ان کو ان عدالتوں سے؟ دیکھیں, عدالتیں بے بس ہیں, عدالتوں پریشرائز ہیں اور بالکل بھی انصاف کی توقع نہیں ہے. خان صاحب کے کیسز اگر لگ جائیں تو اگلے ہی لمحے فیصلہ ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہے ان کیسز میں کہ کوئی عدالت سزا کو برقرار رکھ سکے. سر کل علیمہ خان صاحبہ نے بہت زیادہ سخت لہجے میں باتیں کی اور جائز بھی تھا ان کا وہ جو بات چیت انہوں نے کی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی پارٹی. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا پارٹی کی طرف سے؟ ٹھیک ہے, وہ بین ہے تو وہ پریشان ہے, سب کو لوگوں کو اپنی ایٹموسٹ کوشش کرنی چاہیے. لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن اور زیادہ کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر. اس ٹائم ہمارے ساتھ مولانا نسیم علی شاہ صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایم پی ہیں خیبر پختونخوا کے. سر
इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हो, आज खान साहब के केसेस यहाँ लगे हैं, कितनी उम्मीद है यहाँ से इंसाफ की आप लोगों को? अब उम्मीद हम कैसे वाबस्ता करेंगे इनसे। कल आपने देखा एक सूबे का वज़ीर आला चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर सलाम करता है और वो सलाम का जवाब भी नहीं देता, इसी तरह होकर चला जाता है। ये दुनिया को हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, और हमारे अदालतें अल्लाह रहम फरमाए, हम अगर कुछ कहें तो फिर तौहीन अदालत होगी, लेकिन हमारे अदालतें मजाक बन रही हैं। और इन हालात में बहरहाल फिर भी हम कानून और सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इससे आगे बढ़े तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। बहरहाल हमारी जद्दोजहद तो अमन है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसी तरह हम उनको अखलाक की शिकस्त दिया करेंगे और खान इंशाल्लाह बाहर निकलेगा। क्या मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। मैडम, आपको क्या लगता है, कल जिस तरह सलमान सफदर साहब ने कहा था कि हम 15 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इन केसेस से बरी करवा सकते हैं, तो क्या लगता है इन अदालतों से इंसाफ कोई अहम फैसले हो सकते हैं? देखिए, अदालतों का जो बरना निज़ाम है ना, ये लोगों के सामने यहाँ हो चुका है। खान साहब की फैमिली और वर्कर्स के यहाँ आने का जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि अदालती निज़ाम एक्सपोज हो गया। ये इतना आसान नहीं था कि ये तारीखें देते थे और फिर ये इस तरीके से इसको डिले टैक्टिक्स जो हमारे साथ खेले जा रहे थे, और जो तासुर दिया जा रहा था वही था कि जी सजाएं दे दी गई हैं तो गुनहगार हैं इसलिए सजाएं हुई। हालांकि अगर उसी बात को देखा जाए, उन्हीं केसेस को अगर लगाया जाता जैसे कि सलमान सफदर साहब ने कहा, तो ये 15-15 मिनट का केस था जो कि सॉल्व होता, और जब सबूत नहीं थे तो ये रिहाई मिलती, जो कि नहीं हुई। अदालतों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रेशर क्योंकि है, अवाम बार बार इसका सवाल करती है। ये हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है ये एक्सपोज हो रहा है कि अगर यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम के साथ इतना खुलेआम ये गुंडागर्दी की जा रही है, तो आम इंसान तो यहाँ वफात पा जाता है अपने अदालती निज़ाम के चक्करों में। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक तो वो पहुंच ही नहीं सकता, वो सेशन कोर्ट में मर जाता है। तो ये अदालती निज़ाम एक्सपोज हो रहा है, और ये इस मुल्क का अलमी है कि इस सदी में सबसे बुरी जो चीज़ इस मुल्क के साथ की गई है वो अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाना है, क्योंकि जब इंसाफ नहीं रहता, जब जुल्म बढ़ता है तो मुआशरा तबाह हो जाता है। और अब इन्होंने देखना है कि इन्होंने क्या करना है। मैं बहुत साफ तौर पे कहूंगी कि ये लोग मुल्क दुश्मन है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करता कि अवाम को इस नहज पे लाके खड़ा कर दे कि अवाम इदारों का गिरबान पकड़ ले, लेकिन ये लोग उससे बिल्कुल गुरेजा नहीं कर रहे। तो ये मुल्क दुश्मन है जो मुल्क को फितना की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इंतशार की तरफ, क्योंकि अवाम कितनी मार खाएगी। तो ये इन्होंने देखना है कि इन्होंने अब क्या करना है। हम डटे रहे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह, और अगर इनको लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, और हम जितना हो सका इन्हें एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात की थी कि मैं इमरान खान साहब को 15 मिनट के अंदर अंदर रिहा करवा दूंगा, तो आप क्या कहेंगे मैडम इस हवाले से? क्या खान साहब 15 मिनट में रिहा हो सकते हैं? फिर बिल्कुल हो सकते हैं अगर इंसाफ पर मबनी फैसले किए जाएं तो, लेकिन यहाँ पर इंसाफ है कहाँ? अभी तोशा खाना की सुबह हियरिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है, उसमें जो है ऑब्जेक्शन लगा दिए इन्होंने, वो फिर ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव कराए हैं हमारे लॉयर्स ने, क्योंकि आप देखें कि वो कब फिक्स होती है, वो कब होता है, तोशा खाना की डेट जो है कब मिलती है, क्या उसका प्रोसीडिंग कैसी होती है। अव्वल होना तो ये चाहिए कि दोनों केसेस को आज ही साथ सुन लेना चाहिए, जब वो रिमूव हो चुका है ऑब्जेक्शन तो मेरे सामने साथ सुन लेना चाहिए। 11:30 बजे अलकादिर जो है, अलकादिर केस की हियरिंग है जो डबल बेंच पे मबनी है। लेट्स सी कि आज जो है डोगर साहब जो है वो बैठते हैं या मुस्कुराए बगैर जो है वो उठ के चले जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्या होगा। देखें, हम लोग हैं, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, कानून का एहतराम किया, आइन का एहतराम किया, तो हम इनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि ये भी अपने मनसब का एहतराम करेंगे, ये उस फरीज़े का एहतराम करेंगे जो अल्लाह पाक ने इनके पास छोड़ा हुआ है, जो अल्लाह ने इनको दिया हुआ है, और इनको हक सच पर मबनी फैसले करने चाहिए। तो यकीन करें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी 15 मिनट में रिहा हो सकते हैं। जी थैंक यू। जी, आप क्या कहेंगे? आप तो वकील भी हैं, आप लोगों को 26 और 27वीं तरमीम के बाद इन अदालतों से क्या इंसाफ की उम्मीद है? हम तो हमेशा अदालतों में इंसाफ लेने आते हैं, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि मैं अपने तमाम केसेस जो है वो फेस करूंगा और मैं अदालतों के थ्रू बाहर निकलूंगा। क्योंकि खान साहब पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, और इन अदालतों पर अब भी यकीन रखते हैं। खान साहब ने अब भी यही मैसेज दिया कि लॉयर्स को कहो कि वो मेरे केसेस लगवाएं और उनकी पैरवी करें। तो सर, आज आप
मतलब पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं। सर आज आप हाई कोर्ट के बाहर आए हो और अल्लाह अल्लाह करके जस्टिस डोगर की अदालत में कुछ पेशरफ्त हुई है, खान साहब के केसेस लगना शुरू हुए हैं, कितने पुरुमीद हैं सर आप? देखिए, उम्मीद तो जाहिर बात है नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो हालात हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी इतने पुलिस वाले और अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे और अजीब सा माहौल बनाया हुआ है। खान साहब के केसेस जो है, खान साहब के केसेस का भी आप देख लें कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आप उनके केसेस लगाएं, हम कोई एहसान नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जी आप कोई उनको फेवर करें, कोई उनके साथ कोई मामला ऐसा करें कि कल को ये कहें कि जी हमने इनके साथ बहुत एहसान किया, हम ये कुछ नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके केसेस सुने, आईन और कानून के मुताबिक डिसाइड करें बस, और वो भी नहीं हो रहा। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग किस लिए बनाई है, बात इस बात में आ रहा है। सर पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और वही लोग कानून बनाते हैं असम्बलियों में बैठ के। सर हम देख रहे हैं कि कल भी और आज भी एक मेंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सर ये तो देखें, ये तो आप कोई मुहज़्ज़ब माशरे की या मुल्क की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आजकल ना आईन है, ना कानून है, ना मीडिया है, ना अदलिया है, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे आप ये सोच सकते हैं कि नेशनल असेंबली में, मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग में, नेशनल असेंबली का अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर, सारे MNAs, PTI के चेयरमैन, उनको 2 दिन असेंबली में बंद किया हुआ था। पार्लियामेंट लॉजेस में MNAs को बंद किया हुआ था। तो ये कहीं मतलब होता है मुहज़्ज़ब मुल्कों में या किसी भी मुल्क में? ये तो इन्होंने पाकिस्तान का मजाक बना दिया। तो इनके लिए तो MNA इनके लिए तो फॉर्म 47 वाले MNA ठीक हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और जो जनरल नुमाइंदे हैं उनकी तो कोई इनके हिसाब से कोई ना कोई इज्जत है ना कोई औकात है। थैंक यू सर। सर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए हैं, हमने देखा यहाँ पे और दीगर भी पार्लियामेंटेरियन आए हुए हैं, बल्कि वो सीढ़ियों पे खड़े हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सर क्या कहेंगे आप, कितने पुरुमीद हैं इन अदालतों से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, इस वक्त जो है ना, आपको पता है कि खान साहब की सेहत के हवाले से हमें बड़ा तशवीश है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये भी बड़ी बात है कि हमारे 2 जो है केसेस लग गए हैं खान साहब के, तो आज उनकी हेयरिंग है, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अदालत जो है वो इंसाफ तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि ये कभी इंसाफ कर भी लें। तो आज हम आए हुए हैं और कोशिश करें कि खान साहब की केस की सुनवाई हो, और तमाम पार्लियामेंटेरियन अभी अंदर गए हैं, वकला अंदर गई हैं, और खान साहब की बहनें गई हैं अंदर। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद तो है कि सुनवाई हो जाए, और फिर इसके बाद अडियाला भी जा रहे हैं। खान साहब से आज मुलाकात का दिन है, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि ये कितना कानून की पामारी करते हैं और कितना जो है ना उस पर अमल दरामद करते हैं। लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि इस मुल्क में कभी ये कानून और हक की बात कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक, खान साहब का कहना है कि हमने लड़ना है, हमें मुकाबला करना है, इस जालिम रियासत का मुकाबला करना है। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये भी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि ना इस्टेब्लिशमेंट जो है रोक सकती है, ये जो वो अंदर है। तो आपको पता है कि मईशत आपकी गिर रही है, मुल्क जो है आपका टेक ऑफ कर नहीं रहा, यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मसले हैं और गवर्नमेंट के अंदर भी मसले हैं फेडरल, तो एक दूसरे के खिलाफ जो है ना लगे हुए हैं। लेकिन बाहर आना है, कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो है फैसला करेंगे, इमरान खान को ये छोड़ेंगे इंशाल्लाह, और हम आखिरी दम तक इनका मुकाबला करेंगे। सर आपने कहा कि आज हम अडियाला जेल जा रहे हैं, और आप जिस अदालत के बाहर खड़े हो, इस अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा था कि जुमेरात और मंगल को फैमिली और सियासी रफ़का जो है वो इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात कर सकते हैं। सर आज दिन तक उस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हमने देखा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑर्डर देते हैं कि रास्ते खोले जाएं, इख्तिजाज खत्म किया जाए, वहाँ पे घंटों के हिसाब से अमल दरामद हो जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा सर, क्या वजह? वो तो हम पूछ रहे हैं ना कि ये इस मुल्क में ये 2 रियासत इनने कैसे बनाए हैं कि एक पार्टी के लिए या एक हुकूमत के लिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला किया जाता है कि धरना खत्म करें, और वहाँ पे आपने